is the process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions through speech, signal, writing, behavior, and or any gesture. Now, communication is basically derived from a Latin word communis, which means commons. According to Hudson, as a dictionary language, communication in its simplest form is conveying of the information from one person to another. It is the bridge of meaning. Bridge here means that if we communicate with one another or we share or exchange information with them by speaking or writing. So it involves a systematic and continuous process of telling, listening, and understanding. Now, communication is always a two-way process. मतलब मैं अपने आप से बात तो नहीं कर सकती ना. I have to have a person to communicate. जैसे I am talking and you are listening. I am communicating to you guys. Then next comes our communication always includes two things. One is transference and another is understanding of the meaning. Transference here means sharing of the information. कि मैं आपको अपने आइडियाज, अपने इंफॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन होता क्या है और आप लोग उस चीज को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर उस चीज को बात करने का या समझाने का कोई फायदा नहीं होता. Do you know that people remember 10% of what we read? जो हम बुक्स में रीड करते हैं उसका 10% ही हमारे माइंड में जाता है, लेकिन जो हम चीज सुनते हैं उसका 20% हमारे दिमाग में जाता है, हमारे माइंड में जाता है. एंड दैट 30% of what we see, but 40% of what we see as well as what we hear. Now, next comes the features or characteristics of communication. As I have told you before only that communication is a two-way process. मतलब we need sender as well as a receiver to communicate with each other. It is basically of information sharing and understanding. जब तक हम अपनी information share नहीं करेंगे, आप लोग उस चीज को नहीं समझेंगे. Then communication is verbal and non-verbal. Verbal का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से बात करके orally हम communicate कर रहे हैं एक दूसरे को. Whereas non-verbal, it is not always the case that communication is just talking or writing. Communication can be take place with the help of gestures. Do you know that while speaking, we often resort to physical gestures? जैसे we wave our hand, we shrug our shoulders, we smile, we nod to reinforce what we say. Besides these, there are many means of communications available to us. We use linguistic symbols. Do you know what is linguistic symbols? This is just like as a traffic light. या road signals हो रहे हैं या railway signals होते हैं. That is to convey information to the movement of vehicles and the trains. You know, we also use telegraphic codes, that is for quick transmission of the messages, and secret codes for communicating defense and highly confidential information. Communication is always a circular flow. Likewise, there is a sender. I am a sender. I have a message for you like, hello class, I'm here to give you a seminar. You are the receiver. You are understanding my words. You are understanding my communication. You are taking this communication, you are taking this words into the thoughts कि हाँ जी मैम आए हैं, मैम हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बताने आए हैं. आप उसको समझोगे और मुझे फीडबैक दोगे कि ओके मैम हमें समझ आ रहा है. दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड. हमारा गोल क्या है? हमारा बेसिक गोल है कि आप मेरी बात को या आप सेंडर की बात को समझ सके कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, वो क्या इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता है. कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये चलता जाता है एंड इट इज अ परवेसिव एक्टिविटी. परवेसिव एक्टिविटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट ऑल द लेवल. जैसे प्रोडक्शन हुआ, फिनेंस हुआ, मार्केटिंग हुआ, एट ऑल द, जैसे टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल. This is basically some of the features or characteristics of communication. Now next is communication process or cycle. जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वही है
कि जैसे एक सेंडर होता है, सोर्स और सेंडर, ही इज सेंडिंग अ मैसेज टू द रिसीवर, तो उसके बीच में क्या होता है, एनकोडिंग होता है, एक चैनल मैसेज होता है। चैनल का मतलब क्या होता है, वो पाथ, वो रास्ता जिससे एक सेंडर एक रिसीवर को मैसेज भेजता। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं थ्रू एयर, थ्रू माउथ आप लोगों से बात कर रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग यू, आई एम गिविंग यू माई मैसेजेस, माई फैक्ट्स, माई डाटा, माई इंफॉर्मेशन। और एनकोडिंग का मतलब होता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग योर कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स, और डिकोडिंग का मतलब होता है उसी थॉट्स को दोबारा से ही कम्युनिकेशन में ट्रांसफर करना। नाउ लीव ऑल दिस, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एक मैं एक घर में रहती हूँ और मेरे साथ एक रूममेट है, तो आई एम आस्किंग माय रूममेट, ओके आई एम हंग्री, लेट्स हैव पिज्जा टुनाइट। ओके, देन दिस इज माय मैसेज कि हाँ मुझे भूख लग रही है, चलो हम पिज्जा खाते हैं। तो ये एनकोड किया, मेरा कम्युनिकेशन था, उस मैंने अपने थॉट्स में लगाया कि हाँ भूख लग रही है, पिज्जा खाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अच्छा इसको भूख लग रही है, पिज्जा खाते हैं, चलो वी विल ऑर्डर द पिज्जा। तो उसने मुझे फीडबैक दिया कि ओके आई एम ऑर्डरिंग द पिज्जा। और इसके अंदर नॉइज भी आता है, जैसे आपके फैन की नॉइज हो रही हो, बाहर से ट्रैफिक नॉइज आ रही हो, या आप एक दूसरे से चैट कर रहे हो तो बीच में फोन में नॉइज आ रही हो। दिस इज सिंपल a communication process or a cycle of communication. So these I have explained you now only, sender, communicator, encode करना मैसेज को, फिर communication channel path, जिस रास्ते से हम मैसेज को कन्वे करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या टेलीफोनिकली जैसे भी कन्वे करते हैं, रिसीवर उसको लेता है, डिकोड करता है और फीडबैक। Is it fine with you? Hello class, can you give me a response, yes or no? Are Yes, you ma'am. listening? Are you listening? और भी हैं बच्चे क्लास में? हेलो, Yes, ma'am. गुड गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओरल कम्युनिकेशन, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो कि हम ऑन पेपर्स लिखते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसे हम थोड़ा सा एक्सपैंडली इसको एक्सप्लेन करेंगे। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो हम थ्री टाइप्स में करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, वाया चैनल, चैनल का मतलब वही पाथ जो मैंने आपको डिस्कस किया, थ्रू डायरेक्शन या डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, या मेथड ओरल, रिटन और जस्ट व्हाटएवर। Now, let us take one by one. Channel क्या होता है? Channel, I've discussed before, the path through which the information is transmitted through the organization. So, two categories are there, formal and informal. Formal में क्या होता है, जो कि पाथ ऑफिशियली डिटरमाइंड बाय द मैनेजर। जैसे कि मुझे अभी प्रिंसिपल डायरेक्टर सर से बात करनी होगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्ट तो उनके क्लास, उनके ऑफिस में ही जाके बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक द अपॉइंटमेंट फ्रॉम हिज असिस्टेंट, एंड देन आई हैव टू गो। उससे पहले मैं, मुझे वार्ड बॉय से पूछना पड़ेगा, हाँ जी प्रिंसिपल सर आए हैं, इज ही इज इन द कॉलेज। ये होता है हमारा पाथ, वन लेवल से, लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हमें कम्युनिकेट करना। Whereas इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विच आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, इफ वी आर कलीग्स, हम एक दूसरे से हाँ जी कौन है, कौन कैसा है, या आप फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है, ग्रेप वाइन आपका होता है सर्कुलेशन ऑफ र्यूमर्स या अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन। जो भी र्यूमर्स होते हैं कि हाँ इसने उससे बात करी, ये उसके साथ रहता है, या जो भी व्हाटएवर इज दैट, दैट इज ग्रेप वाइन। नाउ नेक्स्ट कम्स अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बट दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप, whereas informal communication is totally free from all these formalities. We can talk to anyone. You can talk to your friends, you can talk to your cousins, you can talk to your ma'am or sir. But in formal communication, we have to take the path. We have to follow that path for the communication. Whereas informal channels of communication are pre-planned, but in informal, it is not that.
फॉर्मल रिजिड होता है, एज डेविएशंस आर नॉट अलाउड, एक के बाद एक से ही आप बात कर सकते हैं। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो पहले आप एक लेटर साइन करते हैं कि हाँ वी हैव टू टेक अ लीव ऑफ अ हाफ डे, आप उस पर साइन करके आप उसको अपने मैम को देते हैं। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मल काफी स्लो होता है, आपको टाइम लगता है उस काम को करने में, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन आर वेरी फ्यू, वेयरएज इनफॉर्मल में उसका रिवर्स। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑथेंटिक होता है एंड इनफॉर्मल आर नॉन। नाउ नेक्स्ट, these were the channels of communication। अब हम आते हैं उसके बाद कि मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम टॉप लेवल से लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। ऊपर से नीचे तक हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज फ्रॉम सुपीरियर्स टू योर सबऑर्डिनेट्स इन अ चेन ऑफ कमांड, उसे हम डाउनवर्ड कहते हैं बस। और उसके ऑपोजिट को अपवर्ड कहते हैं, दैट इज फॉलो ऑफ योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। देखो, आप सुपीरियर से सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम डाउनवर्ड कहते हैं, लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट से सुपीरियर, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कम्युनिकेट करता है तो उसे अपवर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स इज योर हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, वट एवर वी डू, दिस इज between the same level of organizational department. जैसे we can communicate between production manager and sales manager, finance manager and HR manager at the same level। लेकिन diagonal में क्या होता है, जो भी हमारा communication होता है, that is taking between different levels in an organization। जैसे production manager, he can communicate to the subordinates of the sales, whereas finance manager, he can communicate with the subordinates of the finance। Now next comes our oral communication and written communication। oral communication we have discussed किया था कि it is always expressed through the spoken words, whereas written communication is always in writing। oral communication, it takes very less time, but written communication, it takes more time। ओरल कम्युनिकेशन में नॉट बी सो प्रिसाइज, क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन रिटर्न हमारा प्रिसाइज होता है। अगर आप एक लेटर लिखते हैं तो वो आपको बहुत प्रिसाइज होता है, अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो प्रिसाइज होता है कि आई वांट टू टॉक टू यू। लेकिन ओरल में हम बहुत सारी बातें करते हैं, दैट इज यू नो, यू अंडरस्टैंड इट। oral communication is always, or you can say generally, informal in nature, whereas written communication is formal in nature। So oral communication may not be verified। अगर मैंने आपको कोई बात बोली और मैं वहां जाकर मुकर जाती हूँ कि हाँ मैंने तो ये नहीं कहा, तो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन कि हाँ इट इज नॉट वेरीफाइबल। लेकिन रिटर्न वेरीफाइबल होता है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है कि ये आपका, आपने ये बात बोली थी, ये आपने ये बात कम्युनिकेट कर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जेस्चर्स। जेस्चर्स मैंने आपको डिस्कस किया था, ये एक फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो कि आपके बॉडी एक्शंस बताते हैं, दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंट मैसेज ईदर इन प्लेस ऑफ स्पीच और टुगेदर एंड इन पैरेलल विद द स्पोकन वर्ड। जैसे आप कहते हैं जेस्चर्स ऑफ योर हैंड्स, कि आप वेव हैंड कर रहे हैं, या अपने शोल्डर्स को श्रग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं या नॉड कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारी जेस्चर्स होती हैं। ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट प्ले करती है बिटवीन द कम्युनिकेशन। सो आई हैव कंप्लीटेड माय पीपीटी। Okay. So class, have you understood this meaning of communication and all the things I have explained you, basics of communication, communication process or cycle and everything? Please respond. Hello ma'am, Anshul ma'am. हाँ Okay, जी fine. हाँ जी ma'am. Ma'am, I have completed my seminar. हाँ जी मैम। I'm with my team. And so
Thank you, class, for listening to me so obediently. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for your time. Okay, ma'am. Thank you.